Hello everyone, I am Kirti and I study in class 10th. So friends, first of all you all are welcome to my YouTube channel Study with Kirti and DBS. In this video we are going to discuss some PYQs or you can say important question of chapter Some Applications of Trigonometry. Okay, so this series is very helpful for all of the 10th class students, so just don't miss it, watch it regularly. I will regularly upload the videos. As well, in my previous video I told you that we will start the NCERT explanation of science, so don't worry, I am also uploading that video. Okay, don't be so panic because my pre-board was going on some days before, that's why I was unable to upload it, but now I will upload it regularly, right? So without wasting the time, let's start our video. So a first question given is that the angle of elevation of a top of a tower from a certain point is 30 डिग्री. अब सबसे पहले जो जब आप फिगर बनाते हो इस चैप्टर में, तो उसमें जो मेन मोटिव है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेस बनाना है. ओके, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बेस. एंड वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू, I'm suggesting you that you watch my videos on 1.5x speed, okay, because I hear that my voice is too slow. If you are comfortable with this voice, you can watch this normal, but according to me you should watch in 1.5x, because जब स्पीड हाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा अगले वाले पढ़ाने वाले के अंदर भी जोश है और हमें पढ़ना है. Because whenever I watch any videos, I also watch it in 1.5x, so I'm suggesting you just watch it in 1.5x, because the reason I have told you. And second one is that ki your time will not be wasted, because less than 1 month is left for our board examination, so it's a very precious time for us, so don't waste it. Okay, so let's start the question. The angle of elevation of a top of a tower from a certain point is 30 डिग्री. एक ग्राउंड लेवल बना लिया, एक टावर है हमारे पास, ठीक है. अब उस किसी पॉइंट से, ये कोई पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट नहीं बना, किसी पॉइंट से, पॉइंट का नेम रख लेते हैं ए. अब किसी पॉइंट से टावर से जो किसी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, दैट इज़ 30 डिग्री. क्लियर? दैट इज़ 30 डिग्री, राइट. इफ़ अ ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर. अब ऑब्जर्वर कहाँ होगा? इफ़ ऑब्जर्वर विल बी हेयर. ओके, जो ये पॉइंट गिवन है यहाँ पे, दिस वन इज़ द ऑब्जर्वर, राइट. तो ऑब्जर्वर अगर यहाँ से 20 मीटर आगे चला जाता है, ओके, 20 मीटर आगे, सपोज ये है 20 मीटर आगे. Guys, don't be panic, okay, I will show this clearly on my blackboard. Here I am only just explaining you the figure. Okay, so 20 मीटर आगे चला गया, इतना डिस्टेंस उसने आगे का ट्रेवल कर लिया. तो अगर वो 20 मीटर आगे से देखता है टावर की तरफ, तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन? दैट इज़ 45 डिग्री. इनका भी नामकरण कर लेते हैं. इट इज़ ए, इट इज़ बी एंड इट इज़ सी, राइट. Now what we have to tell that the angle of elevation of a top increase by 15 डिग्री. अब देखो ये 45 कैसा है, क्योंकि वो जैसे ही 20 मीटर आगे चला, सो 15 डिग्री बढ़ रहा है, 15 डिग्री बढ़ रहा है, मतलब 30 प्लस 15 दैट इज़ 45 डिग्री. क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. टावर की हाइट फाइंड करनी मीन्स this one we have to find. Okay, I hope this is clear to you. If not clear, it will be clear when I will go on the blackboard. So let's move on to our blackboard. Yes friends, एक बार दोबारा अपनी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. What was given in the figure? So friends, this is our figure. Okay, एक बार दोबारा से इसको रिकॉल कर देती हूँ कैसे बनाई है हमने फिगर. सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? अपना बेस, मीन्स आप कह सकते हो ग्राउंड लेवल, ठीक है. बेस ड्रॉ कर लिया. बेस के बाद क्या ड्रॉ करना है? उसके बाद क्या गिवन है कि एक टावर है, ऐसे एक टावर खड़ा है, एक टावर हो गया. उसके बाद क्या बोला है कि टावर के टॉप से जो एक पॉइंट पर, ठीक है, कितने का एंगल बन रहा है? वो पॉइंट है पॉइंट ए, कितने का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का. अब कहा कि जो ऑब्जर्वर है अगर वो 20 मीटर आगे जाता है तो एंगल 15 डिग्री बढ़ जाता है. तो 20 मीटर, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है, हेयर इज़ द ऑब्जर्वर. अगर वो 20 मीटर आगे जाके देखता है, मीन्स यहाँ पे दिस वन पॉइंट, इट इज़ पॉइंट पी. ओके, यहाँ पे आके अगर ऑब्जर्वर देखता है तो एंगल कितने का बनता है? 45 डिग्री का. ओके, बेसिकली वी हैव टू फाइंड ओनली द हाइट ऑफ द टावर. What we have to find? We have to find the height of the tower.
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नामकरण भी हो गया इन सबका। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, देखो बेसिकली क्या होता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके 2 ट्राइंगल्स बन रहे हो, देखो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, फर्स्ट वन इज़ ट्राइंगल ACP, ठीक है, एंड सेकंड कौन सा बन रहा है, सेकंड ट्राइंगल बन रहा है PCB, ठीक है। अब 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो जिस क्वेश्चन में से 2 ट्राइंगल्स बनते हैं तो उसमें हमें दोनों ट्राइंगल को सेपरेट लेना होता है। अब वो कैसे लेना होता है, जिसने NCERT की हुई है वो तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देगा, लेकिन जिसने नहीं की हुई है, सो डोंट टेक टेंशन, ओके, बिकॉज इस सीरीज़ में NCERT भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। NCERT अगर आप नहीं भी किए ना तो आपको समझ आ ही जाएगी, ठीक है। अगर आप ये सीरीज़ करने के बाद NCERT करने बैठोगे, सो NCERT विल बी वेरी ईजी फॉर यू, ओके। सो चलिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ट्राइंगल ACP, ओके, फर्स्ट ट्राइंगल दिस वन ACP, राइट। सो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखना है, एन, सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ओके। सो इन ट्राइंगल ACP, right, this one triangle, in triangle ACP, so what is in this triangle, यहाँ पे देखो, एक बात बताऊँ आपको, ये ट्राइंगल, वैसे तो आपको मेन ये वाला ट्राइंगल लेना है, बिकॉज इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है, दिस वन साइड, दिस यू हैव टू फाइंड, सो यू नीड टू टेक ट्राइंगल PCB, ठीक है। बट ये साइड फाइंड करने के लिए या तो ये वाली साइड होनी चाहिए हमारे पास, या फिर ये वाली साइड होनी चाहिए, क्लियर, मीन्स एक साइड होनी चाहिए ना। अब वो क्यों होनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी आप यही सोचिए कि ये साइड निकालने के लिए एक साइड होनी चाहिए, या तो ये बेस होना चाहिए या फिर हमारे पास हाइपोटेनियस होना चाहिए। अब अगर हम इस ट्राइंगल से निकालें, इस ट्राइंगल के पास बेस है, ठीक है, एक साइड है, तो दूसरी साइड निकल जाएगी ना, क्योंकि इसके पास एक साइड तो ऑलरेडी है, दूसरी साइड इजीली निकल जाएगी क्योंकि एक साइड है। जैसे इसको निकालने के लिए एक साइड चाहिए, बट इसके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, जो ये ट्राइंगल है ACP, दिस वन ACP, तो इसमें एक साइड है और इससे हम ये वाले जो इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है, वो निकाल लेंगे, दिस वन साइड, ओके, दैट वी विल फाइंड। तो जब ये वाली साइड निकल जाएगी, फिर ये साइड इस ट्राइंगल के लिए भी वैलिड होगी ना, तो फिर ये साइड हो जाएगी, तो हम ये वाली भी निकाल लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट कीर्ति इज सेइंग, राइट, ये वाली साइड वो वाली साइड, बट एज आई विल सॉल्विंग द क्वेश्चन इट इज़ क्लियर टू यू। सो ट्राइंगल क्या था, ACP। सो इन ट्राइंगल ACP, अब ट्राइंगल ACP में आप देखिए ये क्या है आपके पास, व्हाट इज़ दिस वन इज़ द, दूसरे कलर से लिख लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, दिस वन इज़ द बेस, व्हाट इज़ इट, दिस वन इज़ द बेस, राइट, बेस हो गया। अब आपको बेसिकली चाहिए क्या फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने इस बात के लिए कमेंट भी नहीं किया ना, ठीक है। अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, मतलब आपको लग रहा है दैट इज़ रॉन्ग, सो यू हैव टू कमेंट, ओके। एंड माई प्रीवियस वीडियो आई हैव मेक द वीडियो ऑफ NCERT एक्सप्लेनेशन, राइट, उसमें मैंने जो सेकंड पार्ट था NCERT एक्सप्लेनेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सो उसमें एक ग्रुप्स एंड पीरियड्स में किसी बच्चे को कुछ कन्फ्यूजन है, ही इज़ सेइंग that is a wrong method, but I was not finding that what is wrong in that, okay. So he or she who has commented, they can comment again that what is wrong, I will make it right, because I'm also human beings, okay, I can also make mistakes, I'm not a all-rounder, I'm also your classmate, okay. सो फ्रेंड्स, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप लोग बता सकते हो। अभी देखो ये वाला ट्राइंगल जो है, सो ये इस ट्राइंगल में हम ये वाला ट्राइंगल कैसे ले सकते हैं, आप खुद बताओ फ्रेंड्स। आपने कमेंट भी नहीं किया कि वाला ट्राइंगल नहीं ले सकते, कैसे लेंगे इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज ये 30 डिग्री का जो ये वाला ट्राइंगल तो हम ले सकते हैं ये, बिकॉज ये 45 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इतने में ही बन रहा है, बट 30 डिग्री का एंगल इतने में थोड़ी बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल इस पूरे में बन रहा है फ्रेंड्स, इस पूरे में बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। सो विच ट्राइंगल वी विल टेक ट्राइंगल ACB एंड देन ट्राइंगल PCB, ओके। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड उसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ओके। सो लेट फर्स्ट टॉक अबाउट ट्राइंगल ACB, ओके, ACB। तो चलिए लिखते हैं इसमें, एंड ट्राइंगल ACB,
ओके, इन ट्राइंगल ए सी बी। अब ट्राइंगल ए सी बी में ये जो नीचे आपका गिवन है दिस वन, व्हाट इज इट? इट इज दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द बेस। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है सामने, क्योंकि टावर ऐसे ही तो खड़ा होगा, टावर ऐसे तो हो नहीं सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता है, राइट? सो इट इज़ 90 डिग्री, मीन्स दिस वन इज द perpendicular, this one is the perpendicular, right friends? This one is the perpendicular. After that this one जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है ऐसे लेटी हुई, that is hypotenuse. What was that? That was that, oh sorry, what is that? That is hypotenuse. So this one is the base, perpendicular and hypotenuse. Clear? So उसके बाद क्या है, सही से बना देते हैं इसको. This blackboard is not, I think, not comfortable for me and you too, right? I will just provide him within one day, okay? Within 1 or 2 day I will provide you next blackboard, जिसमें मैंने पहली जो मैथ्स की चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है वही उसी ब्लैक बोर्ड पर हम नेक्स्ट करेंगे, ओके? बिकॉज दैट वॉज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो आई एम प्रोवाइडिंग दिस वन टू यू. डोंट थिंक दैट इट इज़ टाइम पास, इट इज़ नॉट टाइम पास, ओके? सो ले लिया हमने ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी ट्राइंगल ले लिया. अब इसमें आप देखो, आपको कौन सी साइड चाहिए बताओ आप. आपको ये साइड चाहिए ना, ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता है कितने का है, ये भी नहीं पता है कितने का है, तो आगे कैसे होगा? अब देखिए, देखो कुचड़ू मुचड़ू कर दिया है पूरा ट्राइंगल मैंने. कोई नहीं, चलिए, ये हाइपोटेनियस है भाई, कितनी बार लिखेंगे इसको, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया. तो अब देखो क्या करना है इस ट्राइंगल में. हमें कोई साइड नहीं गिवन है भाई. सबसे पहले सारा इरेज करो भाई, बहुत गड़बड़ हो रखी है. रुक जाओ 1 मिनट, ब्लैक ब्लैक कर दो इसको सारे को, है ना? इट्स टू मच मुचड़ू मुचड़ू. सो लेट्स बैक. ओके, तो ए सी बी ट्राइंगल जो है इसमें ये वाली साइड हमें गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो निकालनी है ना, दिस वन, ये तो एच है, हाइट है, निकालनी है, ठीक है. अब इस साइड से हम क्या ले सकते हैं, ये इतना पार्ट जो है ए बी कितना है 20, एंड पी बी को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट इट इज़ एक्स, ओके, इसको मान लेते हैं हम x, एंड दिस वन इज़ 20, ओके. तो ये क्या हो गया, अगर इफ़ ए पी इज़ इक्वल्स टू 20 एंड पी बी इज़ इक्वल्स टू x, सो व्हाट इज़ ए बी विल बी इक्वल टू 20 प्लस x. क्लियर फ्रेंड्स? ए बी विल इक्वल टू 20 प्लस x. क्लियर? ए बी विल बी इक्वल टू 20 प्लस x. अब देखो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया. अब देखो आपके पास क्या है, बेस है, और निकालना क्या है, परपेंडिकुलर है. अब देखो बेस और परपेंडिकुलर वाला रिलेशन किस में आता है, ये आ गया पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले, बोल लिया भाई, बोल लिया. अब परपेंडिकुलर बेस वाला रिलेशन इसमें आ रहा है, और इट इज़ tan थीटा. कैसे याद करते हैं? अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है. तो ये हो गया tan थीटा. अब tan थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, बिकॉज वी आर टेकिंग इन ट्राइंगल ए सी बी, ओके, ए सी बी ले रहे हैं इसलिए. सो थीटा इज़ 30 डिग्री, सो इट इज़ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज़ परपेंडिकुलर इज़ हाइट एंड बेस इज़ 20 प्लस x. राइट गाइज? इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कमेंट राइट नाउ. सो इट इज़ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h upon 20 plus x. Now what is the value of tan 30 डिग्री? सो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. ओके, ये भी आपको लर्न करनी होगी, वरना आप क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व करोगे ना फ्रेंड्स. 1/√3 इज इक्वल्स टू h upon 20 प्लस x. ठीक है, अब इतना हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इनकी, तो h/√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x, और यू कैन राइट इट इज़ h इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन √3. अब देखो और कुछ ताम झाम नहीं कर सकते, इसमें है ही नहीं भाई कोई ऑप्शन, वरना कर भी देते हैं, है ना, कर नहीं सकते हैं ना. तो इसको बना दो अपनी इक्वेशन 1. क्या रूल होता है जिसमें कोई ताम झाम ख़त्म हो जाए तो उसका नामकरण कर दो. व्हाट इज़ दैट? इक्वेशन नंबर 1. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1.
अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 15 अप्रोक्स 15 मिनट की वीडियो हो गई एंड आई एम जस्ट spending 15 minutes in a particular question. What's wrong with me, right? So